नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। तेलंगाना की स्कीमात की मरकजी हुकूमत कर रही है नकल। अम्बेडकर की यौम पैदाइश तकरीब से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। तेलंगाना हुकूमत सहाफियों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। खातून सहाफियों के हेल्थ कैंप की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। अवामी मसाइल का हल तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। बीजेपी को किसानों की कोई परवाह नहीं, मोदी गरीबों को लूटने की पॉलिसी पर अमल पैरा। धान की खरीदारी मरकज की इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। BRS और KCR के खिलाफ गुमराहकुन तशहीर नाकाबिले बर्दाश्त। सुकेश चंद्रशेखर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, रुकने खानसाज कौंसिल के कविता का बयान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लहर, दर्जे हरारत में इजाफा, अवाम काफी परेशान। गुज़िश्ता 2 ta 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर दर्ज। और सरकारी खिदमात में आने वाले कारकुनों को अवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। नए तैनात एहलकारों को तकर्रुरी के खुदूद तकसीम करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर IT और बल्दी नज़्म व नक्श तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना आज जो काम कर रहा है वो मुल्क कल करेगा। उन्होंने कहा कि किस मरकजी हुकूमत तेलंगाना की स्कीमात रैतु बंधु, मिशन भागीरथा और मिशन काकतिया की नकल कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में दलित ताजरों की हौसला अफजाई की जा रही है। रियासत के ये ताजर मुल्क के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। KTR ने अपने काबिनी रुफ़क़ा को ईश्वर और सत्यवती राठौर के साथ बेगमपेट हैदराबाद में महकमा सनत की जानिब से मुनक़दा अम्बेडकर की यौम पैदाइश की तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर टी प्राइड की तरफ से ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को मराहत और अवार्ड्स तक़सीम किए गए। तक़रीब से खिताब करते हुए तारक रामाराव ने कहा कि तेलंगाना बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर की वजह से तश्कील दिया गया है। बाबा साहब का ख्याल था कि सबको वोट देने का यकसा हक होना चाहिए। అందులో వారు అన్న మాట ఏమంటే, మొదటిది ఎవరైనా ఒక వ్యాపారం ప్రారంభించాలి అనుకున్నప్పుడు లేదా దళిత గిరిజన పారిశ్రామికవేత్త కానీ ఒక ఔత్సాహికుడు కానీ ఔత్సాహికురాలు కానీ ముందుకొచ్చినప్పుడు ముందు వాళ్ళను ఆ మూడ్లోకి తీసుకురావడమే కష్టము అనే మాట వారు మాట్లాడినారు. మాతో అవుతుందా, చేయగలుగుతామా, సెల్ఫ్ డౌట్ అంటే నాకే ఉండి మనకి స్వీయ మానసిక ఆందోళన, స్వీయ మానసిక అనిశ్చితి ఏదైతే ఉంటుందో సెల్ఫ్ డౌట్, దాని గురించి మాట్లాడారు. నేను ఆయనకి ఏం చెప్పినా అంటే, కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ తెస్తానని బయలుదేరినాడు కూడా సేమ్ స్టోరీ ఉండే. వీళ్ళతో అవుతుందా, వీళ్ళకంత సినిమా ఉందా, వీళ్ళతోని అసలు వీళ్ళకు ఒక రాష్ట్రం అంటూ వస్తే వీళ్ళకి నడుపుకునేంత సినిమా ఉందా, వీళ్ళకని తెలివితేటలు ఏడ్చినాయా, వీళ్ళకి నాయకత్వ పటిమ ఉందా అని మమ్మల్ని కూడా అడ్డం పొడుగు మాటలు చాలా మాట్లాడినరు. కానీ ఇవాళ ఒకనాడు సామెత ఉండేది, వాట్ బెంగాల్ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో అని. ఈరోజు తెలంగాణ బిడ్డ ఎక్కడున్న దేశంలో ప్రపంచంలో గల్లా ఎగరేసి చెప్పొచ్చు, వాట్ తెలంగాణ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో. తెలంగాణ ఈరోజు ఆచరిస్తుంది, దేశం రేపు అనుసరిస్తుంది అనే మాట ధీమాగా గుండె ధైర్యంతో తెలంగాణ బిడ్డ ఎక్కడున్నా చెప్పవచ్చు. ఇదేదో నేను డైలాగ్ కోసం కొడతలేను, టీవీల కోసం చెప్తలేను, ఈ మాట వాస్తవం. మనం ఇక్కడ రైతు బంధువును మొదలుపెట్టినాకనే దేశంలో కేంద్రంలో కదలిక వచ్చింది. అప్పుడు PM కిసాన్ అని మొదలైంది, దాని పేరు మార్చుకొని పాపం డైరెక్ట్గా కాపీ కొట్టినామంటే బాగుండదు కదా, కాబట్టి PM కిసాన్ వచ్చింది. మనం ఇక్కడ ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చే మిషన్ భగీరథ అని పెట్టినాకనే 3 ఏళ్లకు అక్కడ కదలిక వచ్చింది. కేంద్రంలో జల్ జీవన్ మిషన్, హర్ ఘర్ కో జల్ అనే ఒక కథ మొదలైంది. మనం ఇక్కడ మిషన్ కాకతీయ పేరిట చెరువులు బాగు చేసుకునే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినాక అక్కడ అమృత్ సరోవర్ అనే కొత్త కార్యక్రమం 4 ఏళ్లకు మొదలైంది. మనం ఇక్కడ అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్, మాకు ప్రతి పట్టణంలో పల్లెల్లో పల్లె ప్రకృతి వనాలు,
పట్టణంలో పట్టణ ప్రకృతి వనాలు బృహత్ వనాలు ఉండాలని చెప్పి మనం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నగర వన్ అని అక్కడ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాంతాడంత లిస్ట్ ఉన్నది. వాట్ తెలంగాణ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో అని ఉత్తగానే అంటలేను. తప్పకుండా తెలంగాణలో ప్రారంభమైన టీ ప్రైడ్, తెలంగాణ ప్రైడ్, అది ఉత్తగానే పెట్టలే ప్రోగ్రాం పేరు కూడా. తెలంగాణ నుంచి వచ్చే దళిత గిరిజన పారిశ్రామికవేత్తలు బాగుపడితే దేశానికి సమాజం మొత్తానికి కూడా గర్వకారణంగా మారతారన్న ఉద్దేశంతోనే ప్రైడ్ అనే పేరు పెట్టినాం దానికి. ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఇంక్యుబేషన్ ఆఫ్ దళిత్ ఆంటర్ప్రెనర్స్, తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఇంక్యుబేషన్ ఆఫ్ దళిత్ ఆంటర్ప్రెనర్స్. ఊరికనే ఆషామాషిగా वजीर एक्साइज व सयाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के सहाफियों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है। जुमेरात को रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर के सरकारी हॉस्पिटल में महकमा इत्तलात व तालीमात और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की मुश्तरका सरपरस्ती में महबूब नगर जिले में 17 तस्लीम शुदा खातून सहाफियों के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल मुत्तहदा महबूब नगर में जिले में 1194 सहाफियों को शनाख्ती कार्ड दिए गए थे, लेकिन अब 1895 अफराद को शनाख्ती कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया अकादमी की जानिब से जाबाग होने वाले 18 सहाफियों के लहफ़ीन को 18 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई है। इस तरह बीमार होने वाले 8 सहाफियों को 50,000 के हिसाब से 4 लाख रुपए की माली इमदाद दी गई है। जिले भर में 17 सहाफियों के खानदानों को पेंशन दिया जा रहा है और 7,000 सहाफी खानदानों को फैमिली हेल्थ कार्ड तकसीम किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि जल्द ही तमाम सहाफियों के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद किया जाएगा, जिस तरह खवातीन सहाफियों के लिए किया गया है। इस मौके पर रियासती वजीर ने बास खातून सहाफियों में न सिर्फ मुफ्त चश्मे तकसीम किए बल्कि मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट रिपोर्ट्स भी दिए हैं। तकरीब में म्युनिसिपल चेयरमैन केसी नरसिमलू, एम चेयरमैन मोडा चेयरमैन गंजी वेंकन्ना, हॉस्पिटल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रुकन लक्ष्मी, महकमा इत्तलात के असिस्टेंट डायरेक्टरेट वेंकटेश्वरलू, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर कृष्णा, डिप्टी डीएमएचओ डॉक्टर भास्कर के अलावा दीगर मौजूद थे। కళ్ళద్దాల రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కోట్లాది మందికి రెండో విడత కూడా కళ్ళ పరీక్ష చేసి కళ్ళద్దాలు ఇవ్వడం, ఆరోగ్యశ్రీ ద్వారా అనేక వ్యాధులకు మంచి చేయడం, ప్రతి హాస్పిటల్ కూడా ఆధునీకరణ చేసి, గతంలో ఈ హాస్పిటల్లో ఒక ఐసీయూ లేకుండే, ఆక్సిజన్ సంబంధించిన బెడ్ కూడా నామమాత్రం కూడా అది సిలిండర్తో వచ్చింది. కానీ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్స్, ఐసీయూ 165 ఐసీయూ బెడ్స్, దాదాపు 500 ఆక్సిజన్ బెడ్స్ అన్ని రకాలు చేస్తూ అన్ని రకాల జబ్బులకు కూడా ఈరోజు జర్నలిస్టులకు ఒక నిధిని ఏర్పాటు చేసి జర్నలిస్ట్ కుటుంబాలను ఆదుకొని అక్రిడేషన్ కార్డులు పెంచడం అనేది ఓన్లీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రమే చేసింది. ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా 100 కోట్ల నిధి ఇచ్చి జర్నలిస్టులను కరోనా సమయంలో కూడా ఆదుకునే చరిత్ర ఓన్లీ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ గారికి ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడ మహిళా జర్నలిస్టులకు కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం అనేది గొప్ప విషయం. క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ కూడా హైదరాబాద్ తెప్పించడం, త్వరలోనే మహిళా జర్నలిస్టులకు కూడా కాకుండా జనరల్ కూడా జర్నలిస్టులకు కూడా ఒక రోజు పెట్టి అందరికి పరీక్షలు చేయించాలనేది, దాదాపు 65 రకాల వైద్య పరీక్షలు చేసేటువంటి టీ హబ్ కూడా ఈ మహబూబ్నగర్లో ఉంది. కడుపు నొప్పి వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా, తుమ్మినా కూడా హైదరాబాద్ పోవని చెప్పేది వెనకడికి. वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने कहा कि जिले खम्मा में गुज़िश्ता रोज बीआरएस के इजलास के मौके पर गैस सिलेंडर के फट पड़ने के वाक़े में साजिश के पहलू पर भी जांच की जाएगी। वजीर मौसूफ ने पार्टी के अरकान पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और वीर जोरी रविचंद्र के साथ निम्स पहुंचकर मुतासरीन की यादत की। उन्होंने डॉक्टर से मुतासरीन की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि इनकी हालत अब मुस्तहकम है। तारक रामाराव ने मुतासरीन को बेहतर तिब्बी इमदाद फराहम करने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वाक़े के महलूकीन के विरसा को फीकस 10 लाख रुपये एक्सग्रेशिया दिया जाएगा और उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया है। उन्होंने इस वाक़े में झुलस जाने वाले अफराद की बेहतर सेहतियाबी के लिए नेक तमन्ना का इजहार भी किया। उन्होंने कहा कि झुलस जाने वाले अफराद को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। हुकूमत इन तमाम अफराद के खानदान की मदद करेगी। ये तमाम कबायली थे, इनके खानदान को हुकूमत और पार्टी की जानिब से मुमकिना मदद फराहम की जाएगी।
वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने वाजे किया कि दासा राम बस्ती की आवाम को दरपेश तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने जुमेरात को सनत नगर डिवीजन का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने स्वामी टाकीज के करीब श्रीनिवासा भवन में 40 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सड़क और 75 लाख रुपए की लागत से पानी की पाइपलाइन बिछाने के कामों का आगाज किया। बाद रियासती वजीर ने चेक कॉलोनी में 30 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले सीवरेज पाइपलाइन के कामों का भी आगाज किया। इस मौके पर मुकामी आवाम ने रियासती वजीर से कहा कि वो स्वामी टाकीज पर नीचे लटकी हुई बिजली की खतरनाक तारों को हटा दें, जिस पर रियासती वजीर ने बरकी हुकाम को फौरी तौर पर मुनासिब हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि आप अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखें, तभी आप सेहतमंद जिंदगी गुजार सकेंगे। बाद उन्होंने मुकामी करीब ही वाक़े बालिया नगर के दौरा किया और मुकामी अवाम के मसाइल दरियाफ्त किए। इस दौरान अवाम को दरपेश मसाइल की समाअत के बाद यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द तमाम महकमों के अफसरान से मुलाकात करेंगे और तमाम मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। रियासती वजीर के हमरा कॉर्पोरेटर के लक्ष्मी बाल रेड्डी, जोनल कमिश्नर रवि करण, ई इंदिरा और वाटर वर्क्स के GM हरिशंकर, टाउन प्लानिंग ACP रमेश, SR नगर इंस्पेक्टर सैयदलू, जेड कॉलोनी एसोसिएशन के सदर सूर्या शंकर रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसी तादाद मौजूद थी। ఇట్లనే ఉండాలి. ఓకే మీ పని మీరు చేసుకోండి అని బయట వస్తు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఈ చెత్త చెదారము ఈ దరిద్రం అంతా ఉండడం మూలాన ఏమవుతుంది, మీ పిల్లలకు మీకు కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది. అదే వద్దని చెప్పిన మీకేమో అర్థం కాక ఇన్ని రోజులు ఇబ్బంది పడ్డాం. ఇప్పటి నుంచి మా భార్గవ ఉన్నాడు ఇక్కడనే, అధికారులు ఉంటారు. అవన్నీ మీకేంటంటే వ్యాపారం అంతా బయట చేసుకుంటారు, బండ్లు కూడా బయటనే పెట్టుకుంటారు. ఇక్కడ ఏ చెత్త ఉండదు. ఇప్పుడు లేని రోగాలు వస్తున్నాయి, కరోనా వస్తుందని అనుకున్నా. మీరు రెండోది నీళ్ళు వస్తున్నాయా? ఇప్పుడే చెప్పిన ఇంటింటికి నల్ల వస్తుంది, నల్ల బిల్లు కూడా ఏం రాదు. సరేనా? రెండోది కరెంటు ఇప్పుడే నేను ఆఫీసర్ చెప్పిన, నేను అది మార్చిపిస్తా. ఇక్కడ మాత్రం మీరు జాగ్రత్త పెట్టుకోవాలి. మళ్ళా నేను సిఐ గారికి చెప్పిన, మీ పిల్లలు అప్పుడు చదువుకుని బాగా, మళ్ళీ ఇప్పుడు పిల్లలు वजीर पंचायत राज दियाकर राव ने बीजेपी को किसानों की कोई परवाह नहीं है करार दिया। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मोदी हुकूमत गरीबों को लूटने वाली पॉलिसी पर अमल पैरा कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के दौरे में ज़राअत एक जश्न बन गया है। वज़ीर आला किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से अपाची के मकसद के लिए पानी फराहम करने का सहरा वज़ीर आला KCR के सर जाता है। रियासती वज़ीर दियाकर राव ने वरंगल और महबूब नगर अजला के पालाकुर्ती और दीगर मुकामात पर कायम धान की खरीदारी के मरकज का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR सिर्फ किसानों के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के अनाज खरीद रहे हैं। BRS हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए सरगर्म है। उन्होंने कहा कि रियासत में इस राबे के सीजन में 7,000 अनाज की खरीदारी के मरकज कायम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में चावल की पैदावार 24 लाख टन से बढ़कर 41 लाख टन हो गई है और चावल की काश्त का रकबा 65 लाख एकड़ तक जा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 8 सालों में धान की खरीदारी के लिए 7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस सीजन में धान की इमदादी कीमत A ग्रेड के अनाज के लिए 2,060 रुपए और B ग्रेड के अनाज के लिए 2,040 रुपए मुकर्रर की गई है। BRS रुकनी कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से चंद मीडिया इदारे जानबूझकर तेलंगाना हुकूमत BRS पार्टी और खास तौर पर मेरे खिलाफ झूठी खबरें और झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। KCR का सामना करने की हिम्मत न होने पर मेरे खिलाफ गुमराहकुन तशहीर की जा रही है। रुकने कानून साज कौंसिल की कविता ने कहा कि BRS पार्टी की मकबूलियत और KCR की कौमी सतह की सरगर्मियों का सियासी तौर पर सामना करने की हिम्मत न होने की वजह से तेलंगाना के मुखालिफिन मीडिया इदारों को अपने कब्जे में रखकर जराए अबलाग, TV चैनल
चैनल्स और यूट्यूब मीडिया के जरिए काम कर रही है और जानबूझकर बीआरएस और केसीआर के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक माली मुजरिम एक गुमनाम खत जारी करना, इसके बाद बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव का मरकजी इलेक्शन कमीशन को खत, इसके बाद एमपी अरविंद बीजेपी के टूलकिट के हिस्से के तौर पर सोशल मीडिया पर कीचड़ उछालने की मकसूबा बंद प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कविता ने कहा कि शिक्षण चंद्रशेखर नामी शख्स से मैं वाकिफ नहीं हूं और ना ही इन्हें जानती हूं कि वो कौन हैं, लेकिन हक़ाइक़ की परवाह किए बगैर कुछ मीडिया इदारे झूठी खबरें शाया करने पर सोशल मीडिया और साबित कदम रख रहे हैं। अब तक मेरे मोबाइल फोन्स के मामले में उन्होंने उजलत में खबरें शाया की और फिर बाद में वो मुकर गए। अब एक बार फिर वो मुजरिम सुखेश का इस्तेमाल करते हुए तेलंगाना हुकूमत, बीआरएस पार्टी और केसीआर के अरकान खानदान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कविता ने कहा कि ये सबसे ज्यादा तकलीफदा है कि सहाफी कम से कम इख्तिदार पर अमल नहीं करते। कविता ने तजवीज पेश की कि तेलंगाना के समाज को इस बात का एहसास करना चाहिए कि मीडिया तंजीम भी सियासी एजेंडे का हिस्सा बन रही है और इंतखाबात के दौरान बीआरएस के खिलाफ गुमराहकुन मुहिम चलाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग अक्लमंद हैं, वो बाशऊर इंसान हैं जो जानते हैं कि दूध क्या है और पानी क्या है, सच्चाई से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बरादरी इन लोगों को यकीनी तौर पर मुंह तोड़ जवाब देगी जो कि केसीआर और बीआरएस हुकूमत पर हसद के साथ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जिसने तेलंगाना को तमाम शोबों में मुल्क में सबसे ज्यादा आगे रखा है। कुछ मीडिया इदारों ने मेरे बारे में कचरा उछालने की अव्वलीन तरजीह की है। अगर मुझ में हिम्मत है और ईमानदारी है तो मेरी तशहीर को भी यकसा तरजीह दी जानी चाहिए। कविता ने ऐलान किया कि तेलंगाना के खिलाफ गुमराहकुन तशहीर के खिलाफ हम सख्त जद्दोजहद करेंगे। हैदराबाद शहर के बेगमपेट में बीआरएस का आत्मीय सम्मेलन इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें रुकने असेंबली कुकटपल्ली एम कृष्णा राव, रुकने कानून साज कौंसल पी राजेश्वर राव, मेहमान खुसूसी के अलावा कॉर्पोरेटर महेश्वरी श्री हरि पी सतीश गौड़, साबिक कॉर्पोरेटर तरुणी नायडू और डिवीजन सदस्य सुरेश यादव, राजैया, अनीता, श्री पेद्दा खायदीन, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए रुकने असेंबली एम कृष्णा राव ने कहा, आप देख सकते हैं कि बेगमपेट डिवीजन पहले कैसा था और अब कैसा है। की गई तरक्की से मुताल्लिक़ अवाम को वाकिफ करवाया और हर फर्द की जिम्मेदारी है कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर और रियासती वजीर के टीआर की कोशिशों के नतीजे में हल्के असेंबली कुकटपल्ली तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। తల్లి ఇంకేమైనా రోడ్లు పెండింగ్ ఉన్నాయా? ఇంకెక్కడన్నా మీరు ఇంకే రోజు ఇలా కళ్యాణ లక్ష్మి, షాద్ ముబారక్, ఇలా పింఛన్లు, కేసీఆర్ కిట్టు, ఇలా అదేవిధంగా 5 రూపాయల భోజనం, బస్తీ దాఖానా, ఎన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నాము. కాబట్టి ఇలా బేగంపేట ప్రజలందరూ కూడా లాస్ట్ 9 ఏళ్లకు ఇప్పటికీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆ రోజు ఇంతవరకు నీళ్ళు వచ్చాయి, ఈ రోజు మొక్కల దాకా వస్తున్నాయి. ఆ మొక్కల ధర బంద్ కావాలంటే ఈ 40 లక్షల కోట్లు 40 కోట్ల వర్క్ కంప్లీట్ అయితే 1.5 ఇయర్ లోపల ఒక్క చుక్క నీళ్ళు రాకుండా చూసే బాధ్యత కూడా నేను తీసుకుంటానని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ఈ బేగం పెడుతున్నటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే కుకట్పల్లి, చేలింగంపల్లి, ఉత్తరాపూర్ ఉన్నటువంటి చెర్లన్నీ మన బేగంపేటను ముంచేస్తాయి. जारिया माह रमजान मुबारक के दौरान दूर दराज देही इलाकों में मौजूद मसाजिद में खिदमात अंजाम देने वाले आइमा कराम को जंगाओं की फाइल गैर सियासी तंजीम हम साथ है सोशल सर्विस के जेर एहतमाम मोहम्मद याकूब पाशा की जानिब से जिले जंगाओं के मुख्तलिफ मवाजियात में पेश इमामों में 1 माह के लिए दरकार अशिया जरूरिया पर मुश्तमिल राशन किट्स फराहम किए गए। इस जीवन में मौजे की जानिब से जामा मस्जिद में मज़कुरा मंडलों के आइमा को वदू करते हुए पैकेट हवाले किए गए। मुकामी अवाम और आइमा ने दीन की खिदमत और मसाजिद की आबादी की फिक्र करने वाले पेश इमामों की जरूरियात को पूरा करने के लिए पहल करने पर मोहम्मद याकूब पाशा की सताइश करते हुए इजहार तशक्कुर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रोज मंडल के तकरीबन 10 अइम्मा को जनाब मोहम्मद याकूब पाशा साहब की जानिब से हम 7 सोशल सर्विस जानिब से
जो है आज राशन अक्सर गया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर रास्ते तकसीम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जो है अइम्मा मुअज्जिनीन जो है मुतमईन है और हमेशा के लिए दुआ बरक़ी शौक लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। ये वाक़या शहर हैदराबाद के इलाके डोरी चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 17 साला सैयद अनीसुद्दीन के तौर पर की गई है। मकान में इलेक्ट्रिक मोटर पाइप का स्विच खोलने के लिए गए थे, तहाँ बिजली का झटका लगने की वजह से वो गिर पड़े। इनको देखने के बाद इनके रिश्ते के भाइयों 18 साला रजाक और 17 साला रिजवान को इनको बचाने के लिए दौड़ पड़े, ताहम इन दोनों को भी बिजली का झटका लगा, जिस पर वो भी गिर पड़े। घर में हंगामा देखते हुए पड़ोसी वहां पहुंचे, जिन्होंने बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया। इस बात की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने एम्बुलेंस के जरिए इनको करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टर्स ने इन तीनों को मुर्दा करार दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भद्राद्री कोत्तागुड़ियम जिले आश्वराव पेट मंडल में एक नौजवान को तालाब में डूबने की वजह से मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक आश्वराव पेट में वाक़े मामला वारी कोड़ियम तालाब में के चंदू उर्फ ईसु बाबू नामी नौजवान अपने अरकान खानदान और दोस्तों के साथ तालाब में मछलियां पकड़ने गया था। चंदू की दोस्त तालाब में तैराकी करने गए थे। इसी दौरान चंदू भी पानी में उतरा गया और चंदू, जो कि तैराकी से नावाकिफ था, पानी में डूब गया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। गोताखोरों ने तालाब में कूदकर चंदू की लाश को बाहर निकाला। ताहम बेटे की मौत पर मां बाप ने अफसोस का इजहार किया। पुलिस ने नकली चॉकलेट की तैयारी के बाद मामले को बेनकाब किया है। एसओटी पुलिस ने मुकामी अफराद की इत्तला पर एक खुसूसी में शहर हैदराबाद के अत्तापुर सुलेमान नगर में यह कार्रवाई अंजाम दी। इस छापे के दौरान पुलिस को पता चला कि यह यूनिट बगैर किसी इजाजत के चलाया जा रहा था। पुलिस को इस यूनिट में जहरीले केमिकल्स और नकली गुड़ दस्तयाब हुआ। ये अशिया बाजार में नकली स्टिकर्स के लगाते हुए फरोख्त की जा रही थी। पुलिस ने इस यूनिट के जिम्मेदार को गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत का सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया। काकीनाडा पोल्यूशन डिजास्टर रेस्पॉन्स टेम्सिली मश्क इंडियन कोस्ट गार्ड ईस्ट रीजन की जानिब से कामयाबी से चलाई गई पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज 2023 के नाम से ये मश्क समंदर के 20 किलोमीटर के अंदर चलाई गई। हादसा और ऑयल टैंकर से समंदर में तेल गिरने की सूरत में अमले ने इसे तमसीली मश्क में बाहिफाजत साहिल तक पहुंचाने का अमली मुजाहरा किया। कोस्ट गार्ड के कमांडेंट जीवी माधव ने कहा कि यह मश्क कोस्ट गार्ड यूनिट्स, ऑयल कंपनियों, रियासती इंतजामिया और दीगर शिरकतदारों की जानिब से समंदरी पानी से तेल को हटाने की सलाहियतों को जांचने के लिए की गई थी। दोनों तेलुगु रियासतें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में शदीद गर्मी की लपेट में हैं। रोज बरोज दर्जे हरारत में इजाफे से अवाम परेशानियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। शहरी 10 बजे दिन के बाद घर से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं। गुज़िश्ता 2 ता 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत रिकॉर्ड सतह पर दर्ज किया गया है। तेलंगाना के निर्मल जिले के दस्तूराबाद में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दो दिनों में रियासतों में दर्जे हरारत 42 डिग्री से जायद दर्ज किया जा रहा है। दोपहर में अहम सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जब अप्रैल में इस तरह की सूरत हाल है तो फिर मई में गर्मी की सूरत हाल कैसी होगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना और एपी में आइंदा चंद दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद इजाफे का इम्कान है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।